سب سے پہلے دنیا کے تمام لوگوں کو ہماری ایف ایم ایکسپریس نیوز کی ٹیم کی اور سے عید میلاد النبی بہت بہت مبارک ہو۔ جیسے کہ 12 ربیع الاول عید میلاد النبی کے موقع پر بیجاپور شہر کے آثار شریف میں آثار شریف کا سندل اور اسے شریف بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ تو ہر سال کی طرح اس سال بھی سال 2023 میں آثار شریف کا سندل شریف جو ہے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، جس میں شامل ہونے کے لیے جو ہے ہزاروں کی تعداد میں لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں اس بارگاہ میں۔ تو جو یہاں پر جو سندل چڑھایا جا رہا ہے، جس روم میں مہر مبارک کو رکھا گیا ہے، تو اس روم کا جو ہے دروازہ کھولا جا رہا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اسی پر سپٹمبر 2023 کو ابھی فوراً عصر نماز کے بعد آثار کی چابی کھولی گئی۔ میں، میرے بھائی جان، میرے چاچا جان، میرے ماموں جان اور مجھ پریوار کی طرف سے ابھی دروازہ کھولا گیا، اور میں سبھی ہندو مسلم بھائیوں کو عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ سبھی حضرات کو آنے کی دعوت دیتا ہوں، اور اب مغرب نماز کے فوراً بعد سندل چڑھایا جائے گا۔ سبھی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ سندل میں آ کر تشریف فرما کر ثواب دارین حاصل کریں، اور میں پھر سے عید میلاد النبی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ کل عورتوں کے لیے خاص انتظام کیا گیا ہے، آدمیوں کو اندر آنے کی پرمیشن نہیں ہے، صرف عورتوں کے لیے ہے کل کے لیے، بس اس سے زیادہ۔ آدمیوں کے لیے یہ دروازہ کب تک کھلا رہے گا؟ آدمیوں کے لیے ابھی تو دروازہ کھولے ہم، جسٹ کھولنے کے بعد صاف صفائی کرنے کے بعد فوراً مغرب کے بعد سندل چڑھاتے ہیں۔ سندل چڑھانے کے بعد صبح کی نماز پڑھ کے درود شریف پڑھ کے پھر چابی کرتے ہیں، پھر چابی بہا دیتے ہیں، پھر اگلے سال ایسا ہی ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 11 ربیع الاول ہے، اور 11 ربیع الاول کو شام کو قریباً بعد نماز عصر آثار محل میں جو اوپر کا جو کمرہ ہے، جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی موئے مبارک شریف رکھی گئی ہے، یہ موئے مبارک کی تاریخ 400 سال پرانی ہے، اور ہندوستان میں یہاں سے جو موئے مبارک شریف کا جو یہاں سے جو ایک بال مبارک ہے لے کر کشمیر میں حضرت بل کی درگاہ میں ایک موجود ہے، یہ دونوں کی تاریخ 400 سال پرانی ہے۔ اور آثار محل کا جو دروازہ ہے اوپر کے کمرے کا، جہاں پر موئے مبارک رکھا گیا ہے، وہ 11 ربیع الاول بعد نماز عصر کو بیجاپور کے مشرف فیملی کی جانب سے اس کو کھولا جاتا ہے۔ ان کے خاندان کے ذمہ داران سارے یہاں پر اکٹھا ہو کر، اور تمام عاشقان رسول اکٹھا ہو کر اس دروازے کو کھولتے ہیں، اور اس کے اندر صاف صفائی وغیرہ سب ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ بعد نماز مغرب فوراً تمام زائرین کے لیے اسے کھولا جاتا ہے۔ اور یہ سلسلہ جو ہے قریباً 400 سال سے چلتا آ رہا ہے، اور عصر کے بعد مغرب کے بعد کھولنے کے بعد یہ تمام زائرین کے لیے فجر کی نماز تک کھلا رہے گا۔ تمام رات بھر جو ہے یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سلام پڑھے جاتے ہیں، نعتیں پڑھے جاتے ہیں، ان کے نام سے جو بھی فاتحہ خوانی وغیرہ ہے تمام لوگ زائرین یہاں پر آ کر اپنی جانب سے مکمل کرتے ہیں۔ اور کل صبح فجر کی نماز کے بعد یہ دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ دروازہ بند ہونے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے سال 11 ربیع الاول کو اسی وقت عصر کے بعد کھولا جائے گا، مغرب کے بعد لوگوں کے لیے کھلا ہو جائے گا۔ کل جو ہے 12 ربیع الاول ہوتا ہے، کل یہاں پر آج 11 ربیع الاول کو صرف یہاں پر جینٹس کے لیے الاؤڈ ہے، اور کل جو ہے سارا دن اور شام تک بھی جو ہے پورے بیجاپور کی جتنی بھی خواتین ہیں لیڈیز کے لیے کھلا رہے گا۔ اور مغرب کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر بہت پبلک جمتی ہے، خاص کر کے کل شام کو لیڈیز کے لیے زیارت کے لیے نیچے کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اور مغرب بعد نماز مغرب کے انجمن اسلام سے جو ہے سندل مبارک لے کر انجمن اسلام کے ایک جلوس کی شکل میں آثار مبارک کو انجمن اسلام کے کمیٹی کے تمام ارکان ممبر وغیرہ سب جو ہیں آ کر یہاں پر شرکت کرتے ہیں، اور سندل مالی کی رسم بھی مکمل ہوتی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام سید زین العابدین ہاشمی، میں انجمن اسلام کا وائس پریزیڈنٹ ہوں۔ السلام علیکم۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज शाम में जो है 27 तारीख जो है आज शाम में मगरिब के बाद जो है यहाँ पे आसार महल में जो है संदल चढ़ाया जाएगा और सुबह अंधारे 5 बजे तक जो है दरवाज़ा खुला रहता है। आप सभी हजरत से जो गुजारिश है कि आप यहाँ पे आके संदल में शिरकत फरमा के सवाब इजारा हासिल करें। और कल इसी तरह जो है कल जो उरूस है यहाँ पे सिर्फ लेडीज़ के लिए रखा गया, लेडीज आते हैं और माँ बहनों से भी गुजारिश है कि कल आसार में जो है 8 बजे से सिर्फ लेडीज़ के लिए प्रोग्राम है। अस्सलाम वालेकुम। आसार शरीफ है और बादशाह इब्राहिम आदिल शाह के वक्त से जो बादशाहों के पास जो मुँह मुबारक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आता था वो अपने पास नहीं रखते थे, वो किसी नेक सालेह बुज़ुर्ग के हाथ के पर दे देते थे। तो ये मुशरिफ ख़ानदान में दिया गया था, तो इनके आबा व अजदाद के पास था। और हज़रत हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त मौजूद थे और जब भी बुज़ुर्ग इकट्ठे होते तो वो हाथ में वो लेते, वो एक बंद शीशी में था, उसमें कोई छेद नहीं था और उसमें से वो जैसे बाहर आजकल दिखाते हैं वैसा दिखता नहीं था, वो बंद था। उसको जैसे ही बुज़ुर्ग लोग लेके दुरूद शरीफ पढ़ते, बड़े बड़े बुज़ुर्ग हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह, मुर्तज़ा क़ादरी, तो वो अपने आप बाहर आता और फिर सब ज़ियारत करते और सजदे में चले जाते, सल्लु अला मुहम्मद कहते हुए सजदा करते और फिर वो वापस अंदर चला जाता था। ये उसकी करामत थी, वो ओरिजिनल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक था। तो एक दफ़ा उसमें ये था कि नेक लोग ही बैठेंगे, कोई भी चोर उचक्का ज़ानी शराबी उस महफ़िल में नहीं रहना, ये ऐलान हो जाता था। तो बादशाह आदिल शाह को किसी ने भड़का दिया। आदिल शाह जो था उसने वो नाचने वाली के लिए गोल गुंबज बनाया और फिर उसने कहा मेरे लिए तूने क्या किया, तो वो खुद गिर के मर गई और उसकी कब्र है वहाँ पे, ये आपको मालूम है। तो आदिल शाह को अलाउड नहीं था अंदर आना, उसके बाबा को अलाउड था, इब्राहिम आदिल शाह को, मगर आदिल शाह बादशाह को अलाउ नहीं था। तो किसी ने चढ़ाया कि तू बादशाह होके उससे महरूम है, तो छुप के तू खड़ा रहे, जैसे ही ये लोग दुरूद पढ़ेंगे तो अंदर जाके देख लेना, क्योंकि वो बाहर आया हुआ होगा और सब सजदे में होंगे। तो हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे और वो बाहर आया, दुरूद शरीफ पढ़े, तो जैसे ही वो अंदर आया वो मुँह मुबारक आसमान में चला गया। तो सब रोने लगे कि ये हमसे क्या बेअदबी हो गई। तो सारे पीर हाशिम पीर रहमतुल्लाह अलैह और सारे दूसरे बुज़ुर्ग मुर्तज़ा क़ादरी जिनका मज़ार शरीफ है वो सब रोने लगे। तो फिर अल्लाह से दुआ करे, तो फिर वो वापस आसमान से होता हुआ आया और हज़रत मुर्तज़ा क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह की दाढ़ी से लगता हुआ वापस उसमें चला गया, जो उसके रखने की शीशी थी उसमें चला गया। इसके बाद से किसी ने उसको हाथ में नहीं लिया, सब डर गए और फिर उसके बाद से बस वो पेटी में ही है, वहीं उसकी ज़ियारत होती है, वहीं संदल चढ़ता है। यही तरीक़ा रहा और मुर्तज़ा क़ादरी, और 3 दिन तक हिस्ट्री ऑफ बीजापुर में लिखा हुआ है ये सब कि 3 दिन तक बीजापुर महकता रहा, लोगों के कपड़ों से खुशबू आती रही, मुश्क अंबर की, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की खुशबू, ये उसका मौजज़ा है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो ये बहुत बड़ी बारगाह है। आसार, बड़ा आसार इसको बोलते हैं, सबसे बड़ा आसार बोलते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक की ज़ियारत को, और ये बड़ा आसार बोलते हैं क्योंकि ये सबसे बड़ी ज़ियारत है। इतना ओरिजिनल और बिल्कुल 100% प्रूफ का आसार मुबारक, मुँह मुबारक हिंदुस्तान में शाज़ व नादिर ही है, देखने की बहुत बड़ी सआदत है। यहाँ जो दुआ करोगे वो कबूल होती है, क्योंकि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद अशरफ खान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारे तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी हिंदुस्तान वासियों को और तमाम पूरे जहान को हमारे आका प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईद मिलादुन नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। और मैं आज 27 तारीख को बाद मगरिब के संदल चढ़ाया गया आसार शरीफ में, तो हम सब आके संदल चढ़ा के ढेर सारे दुरूद शरीफ पढ़ के उनके सदक़े में अल्लाह ताला से बहुत दुआएं की हैं कि हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, अमन और शांति से रहे। सभी के लिए हम दुआ किए हैं। आप भी आइए, सुबह 5 बजे तक फजर नमाज से पहले तक अभी ओपन रहता है दरवाज़ा। आप सब लोग आके शिरकत फरमाइए, ढेर सारे दुरूद शरीफ पढ़ के उनके सदक़े में दुआ करें कि सारा उम्मत हमारे आका प्यारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत और तमाम जहानों के लोग अमन और शांति से रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।
आप सभी को मैं और एक बार ईद मिलादुन्नबी की बहुत सारी मुबारकबाद देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइशी दिन के मौके में आज संदल शरीफ चढ़ाया जाता है असार शरीफ में। मैं सभी मुसलमान हिंदू सभी देशवासियों को ढेर सारी मुबारकबाद पेश करता हूँ मेरे और मेरे फैमिली की ओर से, और हमारे नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की बिगड़ी बना दे अल्लाह ताला। और सभी आवाम से गुजारिश करता हूँ हुजूर के सदक़े में जो भी गरीबों की मदद कर सकता है, सवाब जारिया हासिल कर सकता है, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। आने वाले दिनों में आपको सवाब हासिल होगा। और सभी फिर से एक बार हुजूर पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में हम सब की बिगड़ी बनाए, हम सबको रोज़गार मिले, हमारे देश में अमन और शांति हो, और आने वाले दिनों में एक भाईचारा के साथ में रहे हम सब लोग, और गरीब की मदद करें। जितने भी अमीर हैं जो मदद कर सकते हैं दिल खोलकर मदद करें गरीबों को। मैं मेरी बात ख़त्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 12 रबीउल अव्वल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आज विलादत का दिन है, और यहाँ पे आसार महल बीजापुर में सब ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आज ज़ियारत होती है यहाँ पे, और तमाम मुसलमान यहाँ पे आके ज़ियारत करते हैं और फैज़ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैज़ पाते हैं। और बड़ी खुशी होती है यहाँ पे आने के लिए कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करने के लिए, और बड़ी तादाद में यहाँ दूर दूर से अपने अपने मुकामों से आके ज़ियारत करके जाते हैं। और मैं सज्जादा नशीन ख्वाजा अमीनुद्दीन अली अला शेर खुदा माशूक़ रब्बानी से सैयद हुज़ूर अहमद हुसैनी बात कर रहा हूँ।